So you are all very well aware that we are discussing about the programming tools that are specifically used in the concept of data science. And today our topic of discussion is data visualization. That means because in the field of data science, we are totally dependent upon the data. We are completely working with the data. Whatever application we are developing, we require a large amount of data that is specifically related to that particular application. And for that, we do various processings and refine the data as per the application. So in that concept, the data visualization is the key factor. Data visualization means to represent the data with the help of some graphical tools, some graphical methods. And today we are going to discuss them and how to implement them with the help of Python. So today in data visualization, we will discuss four components, that is histogram plots, bar charts, line charts, and scatter plots. So the basic requirement of data visualization is to better understand the meaning and the values that are present in the data and how to implement those values for your particular application. That means if you want to analyze the data for your applications, if you want to follow some particular patterns or trends into the data, if you want to establish some kind of comparisons or relations in between the data, for that purpose the effective implementation is with the help of visualization. So as we have already discussed that in Python, we are having matplotlib package that is specifically used for the graphical representations of the data and how to interactively use or customize that data for your particular application. So aside of the matplotlib, there are other packages also that can be used for graphical representation. The first one is the matplotlib that we are discussing about, which is a low level package and provides lots of freedom when you are implementing the data with the help of visual effects. Another is the pandas visualization, which provides an easy to use interface, but it is the functioning of pandas is with the help of matplotlib. Then Seaborn is also there, which is a high level interface, and it provides a variety of default styles for your graphical representations. That means you can customize your graphical objects up to a certain mark by using various options and tools available in this package. Then ggplot is the grammar of graphics plot, which is based on the R language ggplot2 package. So it can also be used to draw the various graphical representations for the data that are using for your particular application. And the plot ly is also used to draw graphical visualizations for your particular data. It provides a much interactive interface for your data visualization. Then we are discussing about the various plot types that you can represent with the visual effects in Python. The first one is the histogram. Histogram is specifically a kind of object, a visual object that is specifically used to understand the distribution of values in a particular object. Either it is an image or any other kind of graphical object, and to represent the values in that object and their distribution, their frequency distribution, we use histogram. So in matplotlib we can create histogram by using the hist method. Hist method is used to create histograms in Python, but with the help of matplotlib package. That means if you are creating any kind of
graphical representation, then you are specifically required to import the matplotlib package into your application, and after that you can use various graphical objects for data visualization. ठीक है जी. तो matplotlib you need to import into your application, and then you can use hist function. Hist function is specifically used to draw the histogram into your application for the data. If you pass it categorical data, that means जो हिस्टोग्राम आप प्लॉट करोगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैटेगोरिकल डेटा आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा फ्रॉम द अवेलेबल डेटा सेट. और फिर ये क्या करेगा, इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट दैट what is the frequency of occurrence of that particular category of data into your whole data set. ठीक है जी. यानी कि जो आपका डाटा के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है डाटा की, लेकिन किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की आप फ्रीक्वेंसी को आप एनालाइज करना चाहते हो, देन यू कैन यूज हिस्टोग्राम्स. Then it will define that what is the occurrence of that particular category of data into your particular data set. So as you can see in the diagram, this is a particular histogram which is created for the random values. That means some you are using some random function to generate the values, and on the basis of those values you are creating a histogram. As you can see, x you are taking a variable, then this is the np for numpy package included in your matplotlib, and then random function is used to generate the random values. You can also specify here for some particular data set also, but for an example we are taking the random values, and then plt function is used to plot the graphical object histogram, and hist is the function which is specifically used for histogram visualization, and x is the value that you are specifying as arguments to the hist function. That means hist function will get the values from the x variable and plot an histogram, as you can see in the diagram. Then another one is the time series plot or the line plot. So we are discussing about line plot. So it is a chart that shows a trend over the period of time. We might have discussed it earlier also कि over a period of time अगर आप particular data के अंदर trends visualize करना चाहते हो कि क्या trends क्या patterns follow कर रहा है particular data over a period of time. ठीक है जी. For example, if you take about the example of the rain occurrence of last 5 years, तो क्या करेगा, year wise we will plot the how much rain was there in a year wise manner. So it will show according to that, and a trend will be followed into your chart, that how much rain has happened into a particular year. ठीक है जी. So it also allows you to test various hypotheses. Hypotheses क्या होते हैं, आपको पहले बताया था. Hypotheses are the assumptions that you take for a particular प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन. आप कोई भी प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन लेके चल रहे हो तो उसके अंदर जो आप अजम्पशन लेके चलते हो कि दिस मस्ट बी द आउटकम्स ऑफ फ्रॉम द पर्टिकुलर जो भी आप प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो, तो वो आउटकम क्या होती है, हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस आपको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, दैट डिपेंड्स. तो वहां पे आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, लाइन प्लॉट को यूज कर सकते हो जी. So this is your plotting of the time series, that is your line plot. In this you first need to import the matplotlib library dot pyplot. Pyplot is a module, sub module of the matplotlib package. ठीक है जी. उसके बाद import कर रहे हो आप date and time.
डेट एंड टाइम इसलिए क्योंकि ये क्या कर रहा है, ओवर टाइम पीरियड आपको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जो डेटा के अंदर जो पैटर्न्स हैं या ट्रेंड्स हैं, इसलिए। एंड इंपोर्ट numpy as np, numpy specific if numerical calculations are required in your application. Then x is equal to, देन x एक वेरिएबल ले रहा है जिसके अंदर numpy के थ्रू क्या कर रहा है, एक एरे को डिफाइन कर रहा है जिसके अंदर डेट टाइम डॉट डेट टाइम। अभी डेट टाइम क्या डिफाइन कर रहा है, 2018 928 I0। ये क्या है, i क्या है, एक वेरिएबल है जो रेंज किस में रेंज में जाएगा, 24 की रेंज में, क्योंकि टाइम क्या होता है 24 आवर्स की रेंज में होता है ना, तो मैक्सिमम 24 से ऊपर जा नहीं सकता, ठीक है, तो उसकी रेंज में जाएगा। और जो y जो वेरिएबल है वो क्या होगा, वो एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा कोई भी आउट ऑफ द मैक्सिमम 100 रेंज, यानी कि 100 में कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, जिसके अंदर साइज क्या होगा, x डॉट शेप। ठीक है जी, साइज एक वेरिएबल लिया है इसके अंदर y वेरिएबल के अंदर, क्योंकि आपको ट्रेंड्स प्लॉट करने हैं ना लाइन के थ्रू, तो उसके अंदर साइज डिफाइन करेगा क्या, x डॉट शेप, जो x की वैल्यू होगी वो, और डॉट शेप। शेप हमने पहले भी बताया था, एक शेप एक वेरिएबल होता है जो आइडेंटिफाई करता है किसी पर्टिकुलर एरे की। ठीक है जी, एरे 1 डायमेंशनल है, एरे 2 डायमेंशनल है, या एरे n डायमेंशनल है। ठीक है जी, तो वो वैल्यूज यहाँ से उठा के क्या करेगा, ये y की वैल्यूज डिफाइन कर देगा। ठीक है जी, फिर आपको सिंपली क्या करना है, plt डॉट प्लॉट, प्लॉट फंक्शन को यूज करके आपको प्लॉट करवा देना है क्या, लाइन प्लॉट। जो लाइन चार्ट आपका जो ड्रॉ होगा वो प्लॉट फंक्शन के थ्रू होता है, उसके अंदर x और y की वैल्यूज आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एज आर्ग्यूमेंट्स स्पेसिफाई कर दोगे जी। ठीक है, plt डॉट शो किसके लिए था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको विजुलाइज करने के लिए। ठीक है जी, प्लॉट तो आपका प्लॉट कर देगा एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं होगा, उसको डिस्प्ले करना है तो plt डॉट शो फंक्शन। ठीक है जी, तो इस तरह का आपका एक जो लाइन प्लॉट है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा जी ये। ठीक है, देन कम्स स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या है, विच इज ए कन्वेनियंट वे टू विजुलाइज हाउ टू न्यूमेरिक वैल्यूज, कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आप ले रहे हो वो उनके बीच में अगर रिलेशन डिफाइन करना है आपको, ठीक है जी, तो आप क्या यूज करते हो, यू यूज स्कैटर प्लॉट्स। ठीक है जी, तो जो कोई भी वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल ले सकते हो आप, 3 ले सकते हो आप, 4 ले सकते हो, जितने भी वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल है और उनके बीच में जो रिलेशनशिप आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो यू कैन यूज स्कैटर प्लॉट फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा। ठीक है जी, इसके लिए आपको पता ही है, आप स्कैटर मेथड को यूज करोगे स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए। तो इसके अंदर आप क्या ले रहे हो, एक फिगर ले रहे हो, फिगर के अंदर क्या ले रहे हो आप, ax वेरिएबल जिसके अंदर plt डॉट सब प्लॉट्स, यानी कि उसके अंदर सब प्लॉटिंग करने लग रहे हो आप। ठीक है जी, यानी कि एक ब्लैंक फिगर लिया आपने, ब्लैंक फिगर के अंदर आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर फिर आप उसके अंदर आप डायमेंशंस ऐड करने लग रहे हो। उसके लिए सब प्लॉट फंक्शन आप यूज करके उसके अंदर एक प्लॉट एरिया डिफाइन कर दिया आपने। ठीक है, और उस प्लॉट एरिया के अंदर फिर क्या करोगे आप, x और y की वैल्यूज डिफाइन, x इज इक्वल टू क्या, numpy डॉट लाइन स्पेस। ठीक है जी, -1 to 1। ठीक है जी, यानी ये क्या होगी, ये रेंज होगी -1 से लेके और +1 तक। ठीक है जी, और कितनी वैल्यूज प्लॉट करेगा ये, 50 नंबर ऑफ वैल्यूज ये क्या करेगा, प्लॉट करेगा। ठीक है, ऐसे ही y के अंदर np डॉट रैंडम, और कोई भी रैंडम वैल्यू 50 रैंडम वैल्यूज क्या कर देगा, ये जनरेट कर देगा जी। ठीक है, और उनको क्या कर देगा फिर ये आपका स्कैटर प्लॉट ax डॉट स्कैटर xy, तो आपका स्कैटर प्लॉट है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप x और y कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, इसके अंदर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आप देख सकते हो, -1 और +1 के बीच में ही प्लॉटिंग हुई है। ठीक है, कोई भी जो 50 वैल्यूज हमने डिफाइन की इसके अंदर। देन कम्स बार ग्राफ्स। बार ग्राफ क्या होता है,
कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं जी। ये सारे सारे जो ग्राफ्स हैं आपको इनको बेसिक तो आपको पता ही है कि आपने मैथ में पढ़ा होगा, आपने अदर आपके जो अदर किस सब्जेक्ट में आते हैं आपके, शायद डिस्क्रीट में भी आए होंगे। ठीक है, तो बार ग्राफ्स क्या होते हैं आपके, जहां पे आपको कंपैरिजन करना है बिटवीन द वैल्यूज। ठीक है जी, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के दूसरे पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यूज के साथ अगर आपको कंपैरिजन करना है तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, वहां पे आप यूज करते हो जी बार ग्राफ। ठीक है जी, तो इसके लिए आपको पता है डॉट बार मेथड यूज करते हैं आप बार ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो यहाँ पे एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज ए बार चार्ट which is showing a comparison between the four variables a b c and d। ठीक है जी, और वो क्या कर रहा है जी, डेटा फ्रेम ले रहा है, कोई भी रैंडम वैल्यूज वो लेने लग रहा है। ठीक है, जो क्या ले रहा है, अप टू 10, 0 to 10 इसकी वैल्यूज जाएंगी, रैंडम वैल्यूज, यानी कि 0 to 9 तक टोटल 10 वैल्यूज के ऊपर क्या करेगा, ये कंपैरिजन शो करेगा। ठीक है, ये 4 जो शो कर रहा है दिस इज फॉर द वेरिएबल्स, कि आप 4 वेरिएबल्स के बीच में क्या कर रहे हो, आप कंपैरिजन शो करना चाहते हो। ठीक है जी, तो आप क्या कर दोगे, बार चार्ट ड्रॉ कर दोगे जी। कैसे, डॉट बार फंक्शन यूज करके, माई डी एफ डॉट प्लॉट डॉट बार। ठीक है जी, तो इस तरीके का एक बार चार्ट आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा, जो क्या करता है, ये क्या, दिस इज द लीगेंड्स। ये क्या होते हैं, ये लीगेंड्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर ये नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कलर स्कीम किस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए यूज हो रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, लीगेंड्स को यूज करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ए बी सी और डी के बीच में क्या हो रहा है, डिफरेंट वैल्यूज, जो रैंडम वैल्यूज जनरेट करेगा ये रैंडम फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ये एक बार चार्ट ड्रॉ कर दिया, इसके अंदर क्या होंगे, वैल्यूज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स। हर बार क्या करेगा ये, 10 बार वैल्यूज जनरेट करनी है तो 10 की 10 क्या करेगा, ये रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। तो कभी ए की डिफरेंट हाई होगी, कभी बी की हाई होगी, कभी सी की, कभी डी की। ठीक है जी, और उसके अकॉर्डिंग एक क्या, एक बार चार्ट ड्रॉ हो जाएगा आपका। जरूरी नहीं आप रैंडम फंक्शन ही यूज करो, आप कोई भी पर्टिकुलर डेटा सेट आप यूज करके यहाँ पे ए बी सी और डी की पर्टिकुलर वैल्यूज डिफाइन कर सकते हो, और उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। तो ये विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है इनसे क्या हो रहा है, एक तो आप थ्योरेटिकली टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर आप डेटा को एनालाइज करो, दैट इज नॉट मच इफेक्टिव। ठीक है, लेकिन जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या है, दैट इज ए क्विक वे टू एनालाइज द थिंग्स, टू एनालाइज द पैटर्न्स और टू एनालाइज द वैल्यूज इनटू द डेटा that are specifically related to your particular application, जो भी आप करंटली बनाने लग रहे हो जी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, द विजुअलाइजेशन।